take the final exam, है ना? State of Arunachal Pradesh positive impact within their organization. के लिए सर उसमें हम लोग का जो इस पे जो बिल्डिंग है सर उसका मेन मोटो हम लोग वही है क्या एक स्किल है धन दौलत बंगला रुपया पैसा छोड़ करके बीमारी लोगों को सेवा करने में उतर के आया है, तो इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नर्स लोग। जिस तरह से हम लोग हमेशा जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हमने बताया, अपना सुख सुविधा बंगला रुपया पैसा धन दौलत छोड़ के जैसे बीमारी को सेवा करने आया है, ऐसे ही ये लोग भी बीमारी को अपना सेवा करने आया है। तो इसलिए इनका जैसा और डेडिकेटेड काम करने वाला हम लोगों को सोसाइटी में हमेशा मिलेगा नहीं। तो यही एक टीम है जो कि बीमारियों को सेवा करने के लिए आता है। बाकी लोग तो सब हम लोग का दूसरा सुख सुविधा ढूंढते हैं, ये सुख सुविधा को छोड़ करके फिर लोगों को सेवा करने आते हैं, कर दी ना उसको। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, सेवा जब करने के लिए आया है तो हम लोग उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये हमको पनिशमेंट दे रहा है या हमको पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहा है। हम सेवा करने आए तो सेवा करने का उसी मूड में ही हमको जाके काम करना है। जहाँ में नर्स का कमियां हैं तो वहाँ हम नर्स को जाना चाहिए, जहाँ में डॉक्टर का कमियां हैं तो डॉक्टर। अरुणाचल में डॉक्टर नर्स और टीचर का कमियां हैं, ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस कमी का बीच में भी हम लोग कैसे काम करना है वो हम लोग देखेंगे। अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब है सर अक्रॉस दी स्टेट, जो अभी तक मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है लेकिन कहीं कहीं में डॉक्टर का कमियां है, कहीं कहीं में नर्सेज का कमियां है, तो उसको लेकर आप लोग किस तरह से आगे आ रहे हैं? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, जहाँ में कमियां है वो हम फुलफिल की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा डॉक्टर और भी रिक्रूटमेंट हो गया है तो फिर उसका भी और जहाँ कमियां होगा वहाँ कोशिश करेंगे। लेकिन एक दिन में सारा कमियां पूरा नहीं होगा, तो इसलिए डॉक्टर का कमियां तो है ही है। जहाँ सकेगा वहाँ में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जरूर सॉर्ट आउट करेंगे उसको। सर DNI AP की तरफ से आपको एक अपील भी किया है कि सर जो कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ मदद करें। हाँ, मैंने बोल दिया उसको, जितना सकेगा हम लोग जो जल्दी से जल्दी उसको हेल्प करेंगे। I'm very happy to be here for this conference, third conference, and as your question is for the young nurses, for at whatever age group, is young and old and everyone, we the nurses have to have a sense of devotion, dedication, and discipline, and as I said in my speech, integrity. Unless we work with integrity, our profession, we cannot lift it up. Profession will always go down. So I request my young nurses of Arunachal Pradesh that they also maintain devotion, dedication, and discipline, as well as integrity. That will, it will percolate down up to the patient. I'm not talking only about them in their professional life, but the patients will get the best care, the best benefit. I'm very thankful to our health minister, and also I'm as a regional vice president, I'm also very thankful to our association, which is the headquarter at Delhi, for giving us the amount in order to buy the land. So I really congratulate all the state branch officers, the Mepung and Yasung and others, that they have worked so hard and we have got the land. And now it is up to the nurses to do self-contribution plus the help of the government. We should not only depend on the government all the time. We, the nurses, also we have to work hard to collect money so that we can, build the building. And I would appreciate and thank the health minister for, openly and publicly declaring that he will also help from the government side. And in order to, I would like to give one message. That is, I request the government of Arunachal Pradesh, especially the health department, that one more thing that I could not do during my tenure, I tried to do the nursing council, it has come up, and set up the nursing cell, it has come up. But one very important and special point left, that is cadre system. We the nurses need a proper cadre. Unless we have a cadre, it is very difficult to move forward. So, in the nurses cadre, we have the nursing service, which is the hospital service.
Then we have the nursing education, which is the colleges and the schools, and we have the public health nursing. So these are the three cadres in nursing. So I request the government of Arunachal to please set up a proper cadre with the help of all the nursing officers. The proper cadre has to come up where they will see the qualification as well as the seniority. We have to be very clear in our mind. Our vision should be very clear. We should not do anything that is going wrong. The qualification is very important as well as the seniority is very important. In all the three cadres, I humbly request, that was one work which I could not finish. I had to retire in 2012. So that work I have left to all my young juniors, and I hope they will complete the nursing cadre. And the government of Arunachal, I request to please help that the nurses must get a proper cadre formation. Thank you. मेरा मैसेज है एज डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मैं नर्स को बहुत मानता हूँ. दे आर अ वेरी गुड कम्युनिटी वर्कर्स, एंड इसका अलावा दे आर इज ए नोबल प्रोफेशन. तो आई फील लाइक एज ए टू बी अ गुड नर्स इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. तब भी हम सोचते हैं कि नर्स आगे बढ़े, एंड एनी हेल्प असिस्टेंट मेरा साइड से होगा. आई विल लुक इनटू दैट, एंड गवर्नमेंट साइड भी दे आर वेरी होपफुल. गवर्नमेंट विल असिस्ट ऑल द नर्सेज सर्विसेज, एंड जितना भी हो आजकल जो नर्सेज का इम्प्रूवमेंट के लिए सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट हो, जो भी हो गवर्नमेंट साइड से दे आर गिविंग अ वेरी रेस्पेक्टेबल अपॉर्चुनिटी. और इस बार भी इतना नर्सेस के लिए सहयोग दिया है गवर्नमेंट भी. मैं उसके लिए आभारी हूँ. एंड नर्सेस विल टेक इन टू अ न्यूअर हाइट, एंड आई गिव अ बेस्ट लक to all the nurses who have come across here and who have not attended this conference also. They will do a good justice to their work services and serve the betterment of the Arunachal Pradesh across the state. Thank you very much. जो हम लोग का इवेंट है, हम लोग का जो ओकेजन है, ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टेट ब्रांच अरुणाचल प्रदेश का थर्ड स्टेट कॉन्फ्रेंस है ये. तो ये कॉन्फ्रेंस जो स्पेशली स्टेट कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, एवरी डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट किया है. बहुत सारा 100 अबव नर्सेस जो डिस्ट्रिक्ट में है, सब लोग आया हुआ है, आज पार्टिसिपेट किया है. तो आज के जो कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन हुआ है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर बहिरम वाघे सर एज ए चीफ गेस्ट अटेंड किया है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हम लोग का DHS सर आया है, डायरेक्टर NHM आया है, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन आया है, सब आज अटेंड किया है. उसके लिए बहुत थैंकफुल है सबको सर, क्योंकि ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन का जो आज का जो मेन जो मोटो है कॉन्फ्रेंस का, सिर्फ ये नहीं है, इनॉग्रेशन का नहीं है, क्योंकि हर नर्सेस जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, कुछ इसमें हम लोग का साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन होगा, हम लोग का पैनल डिस्कशन होगा, नर्सेस इसमें एजुकेशन भी हम लोग देगा इसमें. तो हम लोग रिसोर्स पर्सन बाहर से आउट ऑफ स्टेट से भी हम लोग लेके आ रहा है. तो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा इसमें, अभी कंटिन्यू चलेगा, शाम तक चलेगा कॉन्फ्रेंस. सब जितना नर्सेस ले पार्टिसिपेट करेगा आज, वही आज का मोटो है. और एक बात है मेरा तरफ से एज ए जनरल सेक्रेटरी TNI स्टेट ब्रांच, जो हम लोग का जो स्टेट में जो नर्सेस लोग के लिए जो बहुत साल से पेंडिंग रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन तो 2023 को हो गया था, कैडर वाइज हो गया था. बहुत ज़्यादा नर्सेस है जो रिक्रूटमेंट करना था, जो वैकेंसी है, जो अभी नर्सेस लोग अभी जैसे कि हम लोग का नर्सिंग ऑफिसर है, NM है, और जैसे हेल्थ एंड वेलनेस लोग है, जो NM और नर्सिंग ऑफिसर का अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो एक स्टेप उठाया है वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए. इसके लिए बहुत बड़ा थैंकफुल है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, स्पेशली हमारे CM सर से बहुत बड़ा थैंकफुल करता है TNA तरफ से कि नर्सेस के लिए एक अच्छा एक स्टेप उठाया है वन टाइम रिलैक्सेशन करके, स्पेशली जो सीनियरिटी बेसिस में रेगुलर करना है. प्लस जो अभी 70-30 किया है सर लोग बोला है, इसके विषय से बहुत अच्छा लगा सुन के. जो न्यूली नर्सेस है, जो ओल्ड नर्सेस को, वो भी ओपन टू ऑल होकर एग्ज़ाम दे के आएंगे, और बाकी जो 70% जो दिया हुआ है उसको सीनियरिटी बेसिस रेगुलर होगा, या अभी रिक्रूटमेंट होगा इसके लिए.
इसलिए ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन का स्टेट ब्रांच से वही मैं एक आज का तरफ से मैं बोलना चाहता है। ऑलरेडी हम लोग को ये स्टेट जो नेशनल ब्रांच हम लोग जो लेन दिया है स्पेशली, तो जो लेन जो है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में सेकंड स्टेट है जो हम लोग को लेन दिया है। फर्स्ट जो मिजोरम है, सेकंड हम लोग का अरुणाचल प्रदेश है स्टेट नर्सिंग के लिए जो लेन दिया है, स्पॉन्सर जो फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। लेन तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो किया है, हम लोग का नाहरलगुन पे है, लोअर मॉडर्न प्लेस पे है हम लोग का ऑफिस नर्सिंग, हम लोग का TNU ऑफिस जो स्टेट ब्रांच का। तो उसके लिए अभी ऑलरेडी लेन तो मिल गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से मैं वही आज भी एक रिक्वेस्ट किया था कि ऑलरेडी नर्सेस लोगों जो लेन स्पॉन्सर किया है सेंटर से, लेकिन अपने स्टेट गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जो नर्सेस के लिए जो अभी ऑफिस जो बनेगा उसमें हम लोग मेन मोटो क्या है, स्किल लैब जो ट्रेनिंग नर्सेस लोग को होता है, ट्रेनिंग करना जो हम लोग का प्रैक्टिकल कराता है, जो हम लोग का एजुकेशन देता है, जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है स्किल लैब में, उसके लिए हम मेन मोटो उसके लिए है हम लोग को। तो जो आउट ऑफ जो हम लोग का नर्सेस लोग अप टू डेट नहीं हो पाता है, आउट ऑफ अरुणाचल जाता है और कभी हम लोग का ट्रेनिंग नहीं हो पाता है, इसके लिए अभी हम लोग का बहुत खुश खबर है कि अरुणाचल प्रदेश में अपना स्टेट में एक TNU ऑफिस बनेगा, उसमें हम लोग स्किल लैब बने नर्सेस लोग के लिए स्किल लैब बनेगा जो अप टू डेट होते रहेगा। जो आज का मॉडर्न समय में इतना टेक्निक आ गया, इतना हम लोग का आगे बढ़ना अप टू डेट रहना चाहिए। अभी हम लोग का ऑफिस आने का कारण हम लोग का आस्ते आस्ते अभी हम नर्सेस का भी बढ़ेगा, वही बोलना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। पोस्ट में जैसे कि जो पोस्ट क्रिएशन हुआ है, तो आगे बहुत साल आगे 2 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ओनली था। अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होगा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होगा। इसलिए गवर्नमेंट को सच का बहुत थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर क्रिएटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑल्सो। ये हम हमारा स्टेट ब्रांच तरफ से बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। इसी कॉन्फ्रेंस का थ्रू से सबसे पहले मैं अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को थैंक यू देना चाहते हैं दिल से, और एंटायर नर्सेस के तरफ से, जो हमारे नर्सेस को आज पहली बार आफ्टर नेपा टाइम से हमारा कुछ नहीं हो रहा था, इस बार हमको 1073 पोस्ट लाया है। इससे बहुत लोग को बेनिफिट होगा, नॉट ओनली द नर्सेस, जो पब्लिक होगा, पेशेंट होगा, सबको बेनिफिट मिलने जा रहा है। अभी हम लोग फिलअप का प्रोसेस में हैं। और दूसरा जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है हमारा वागे सर, आज हमने बहुत सारा 7-8 हेल्थ मिनिस्टर देखे मेरे सर्विस लाइफ में। ऐसा मतलब हेल्थ मिनिस्टर जो इतना एंथुसियास्टिक है, एकदम जील टू हेल्प द पेशेंट, जील टू हेल्प द नर्सेस, पहली बार हमने देखा है। सर को भी मैं अपना दिल से, तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। और हमारे नर्सेस जो है आज जितना भी आए हैं उनको भी थैंक यू। वो लोग भी अपना ड्यूटी को छोड़ के हमारा नर्सेस को ये करने के लिए, अच्छा करने के लिए अपना दिल से आए हैं, खुद कंट्रीब्यूट करके, अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद करके, सब अपना बेयर करके आज आए हैं। क्योंकि आप लोग को पता है हमारा नर्सिंग अभी इतना डेवलप नहीं हुआ अरुणाचल में, मगर सेंटर में तो डेवलप हुआ आज देखा है। अरुणाचल अभी हमारा इन्फेंट स्टेज में है, तो हमारा अभी हम लोग स्ट्रगल कर रहे, तो पब्लिक से भी अपील है हमको भी सपोर्ट दे, और हम लोग सो दैट मतलब हम लोग आपको सपोर्ट सर्विस अच्छे से दे सके। और प्लस हमारे नर्सेस को अपील है, जैसे आज ने DSS सर ने बोला कि कोई सब्सिट्यूट में पेमेंट करते हो, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेन हैं, हमारा नॉलेज हमारे अंदर रह गया, हम किसी को देने से वो गलत होगा। और ऐसा चीज़ अगर सुनाई देगा तो मैं भी एक्शन लेने के लिए वो रहूँगी। और दूसरा जो हमारा बिहेवियर है, नर्सेस का बिहेवियर जो है, उसको थोड़ा चेंज करने के लिए अपील करती हूँ सारे नर्सेस से। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ा सा और हेल्प करने की एटीट्यूड रहेगा तो आधा जो ये हील हो जाएंगे। थोड़ा मुस्कुराहट रहना चाहिए सबको, मैं इसी का माध्यम से अपील करती हूँ। और सारा जो आज हमारे हमको सपोर्ट करने के लिए आए हैं स्पेशल गेस्ट में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, मिशन डायरेक्टर है, और आपदा के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, APMC के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो सारे आए हैं हमारे यहाँ में। सबको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, आप लोग ने आया, हमको बहुत ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने दिया। और अवार्डी हैं उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। दिल्ली का नेशनल फ्लोरेंस का अवार्डी है, कोई इंटरनेशनल गेम्स में आए हैं, सारे अवार्डी को भी मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।